गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पूरा बोर्ड का आपका सिलेबस कवर होगा, साथ में कुछ सैम्पल पेपर भी मैं डिस्कस करूँगा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा। बोर्ड में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स में, उसके सारे टॉपिक्स यहाँ मैं कवर करूँगा। तो आज सबसे पहला टॉपिक मेरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है आपका क्लास 10th में, आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, उसी को एक्सटेंड किया गया है। इसमें मेनली ये जो चैप्टर है बेस्ड है पूरी तरीके से फार्मूला पे। तो कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होंगे मेनली, क्योंकि क्लास 9th में हम लोग सारे फार्मूले पढ़ते हैं, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर और हेमी स्फीयर। क्लास 10th में फर्स्ट टर्म डिलीटेड हो चुका है, तो मेनली यही सारे फिगर बचे हुए हैं जिनको हमें एनालिसिस करना है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूले डिस्कस करूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड से, कि कौन कौन से फार्मूले हमें बोर्ड में 10th बोर्ड में याद रखने हैं, क्योंकि 9th में तो सारे फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 10th में हमें स्पेशली जो फार्मूले पढ़ने हैं वो हम याद रखेंगे। जैसे तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्यूबॉइड से, कौन कौन से फार्मूले हमें याद रखने हैं, कौन कौन से फार्मूले। In a cuboid, you know that the volume of cuboid and total surface area, lateral surface area, that is called area of 4 wall. So we need only volume and total surface area of cuboid for class 10th purpose. Only remember volume of cuboid, that is L into B into H, and total surface area, two bracket B, LB plus BH plus HL. And one more formula, diagonal. Remember the diagonal of cuboid under root L square plus B square plus H square, and diagonal of cuboid is the longest side of cuboid. So in board exam he asked 1 marks question, find the length of longest side in a cuboid. So this is the formula, under root L square plus B square plus H square. So remember these three formula. Lateral surface area, area of 4 wall is not required in class 10th. Now next 3D figure. Next 3D figure is cube. So in a cube all sides are equal. So volume is a cube. And in a cube how many square are there? 6 square. So area of 6 square is 6 square. These two formula is sufficient for class 10. Volume of cube and total surface area. Next, cylinder. A cylinder is a 3D figure, consists one rectangular surface. It is curved surface and top and bottom are circle. So in class 10th especially we required only curved surface area, because we required only outer surface area. हमें केवल बाहर का एरिया चाहिए, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस क्लास 10th में होंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड होंगे. सो वी रिक्वायर्ड ओनली आउटर सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच. कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? अगर आप सर्किल का सर्कमफ्रेंस जानते हैं, 2 पाई आर दैट इज मल्टीप्लाई बाई एच, सो CSC ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, if you know that area of circle pi r square multiply by h, volume of cylinder pi r square h. So these two formula only remember, don't remember total surface area, because in class 9 total surface area he asked that, because in class 9 the question is based on single solid figure, but in class 10 the figure are consists 2 or more than 2 solid figure. So we require curved surface area, only outer surface area. So remember this, 2 pi r h and volume pi r square s. And one special case of solid cylinder is hollow cylinder. So whenever hollow cylinder is given, so how to identify the cylinder is hollow cylinder? So maybe two radius are given, internal radius and external radius. So we calculate the volume of hollow cylinder by subtracting outer volume minus inner volume. So remember that formula also, we subtract their volume.
This is the hollow cylinder or cylindrical pipe. Internal radius is small r, external radius capital R. So how to find the volume of that metal? So we subtract their volume, outer volume minus inner volume. Pi r square h minus pi r square h. Taking pi h common. This is the volume of hollow cylinder. So you remember this because maybe he asked that one question on this. Now next 3D figure. Cone. In a cone, base radius r, height, and this one is one more height, slant height. Slant height का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, जो सॉरी स्लोप में है. तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला वो स्लैंट हाइट का ही है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट. So we apply Pythagoras formula in this triangle. L square equal to h square plus r square. आफ्टर कैलकुलेटिंग स्लैंट हाइट निकालने के बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत है. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होगा केवल बाहर का एरिया, टॉप का, चारों तरफ का, उसमें सर्किल का एरिया इंक्लूड नहीं होगा. जो ट्रायंगुलर रीजन आपको दिख रहा है, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कर्व्ड है वो, उसका एरिया. तो उसको कहते हैं हम लोग CS से पाई आर एल, पाई रेडियस इनटू स्लैंट हाइट. एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको याद है पाई आर स्क्वायर एच, देन कोन का वॉल्यूम आप याद कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओनली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो इट मीन्स द मेन कॉन्सेप्ट इज we remember the curved surface area and volume. Only two formula for each figure. Curved surface area means outer area and volume. That is sufficient for class 10. Now next 3D figure is sphere and hemisphere. If you know that sphere formula, then hemisphere formula is half of that, because hemisphere उसका आधा होता है. तो sphere whose radius is r. So curved surface area of a sphere is 4 pi r square. You know that area of circle pi r square, then multiply by 4. So area of sphere is 4 pi r square, and volume means capacity of sphere. Four by 3 pi r cube. 4/3 pi r cube. This is the volume of sphere and curved surface area of sphere. Now hemisphere. Hemisphere whose radius is r. तो curved surface area of hemisphere is same like sphere 4 pi r square. The curved surface area of hemisphere means area of that upper part. ये ऊपर वाले हिस्से का एरिया अगर हमें चाहिए, और यही हमें चाहिए होगा 10th में, केवल अपर वाले पार्ट का, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो वो होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम कैपेसिटी, आपका स्क्वायर का कैपेसिटी 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. 4 की जगह 2 कर देना है. ठीक है. तो ये थे फार्मूले, एक क्विक रिवीजन फार्मूलों का. यानी मेनली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी रिमेंबर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच फिगर एंड वॉल्यूम. इन sphere or hemisphere, sometime spherical cell is given. So what is spherical cell? Again, if two radii are given, two radius are given, small r or capital R in a sphere, so that is called spherical cell. And spherical cell volume is same like cylinder volume, outer volume minus inner volume. Similar, spherical cell volume is outer sphere volume minus inner sphere volume. Sphere volume you know that 4/3 pi r cube. So subtract the outer volume minus inner volume. So you can note this formula also. Small r, capital R. It is a spherical cell. It is called spherical cell. So volume of spherical cell is 4/3 pi r cube minus 4/3 pi small r cube. Taking 4/3 pi common. So whenever two radius are given, then we use a spherical cell formula, and it is very easy to remember. External volume minus internal volume, 4/3 pi r cube minus 4/3 pi r cube. Like in cylinder, pi r square h minus pi r square h. In hemispherical also, hemispherical bowl is given and two radius are given, small r and capital R. Then how to find the volume? 2/3 pi r cube minus 2/3 pi r cube. Because after calculating the volume, he asked that mass.
Okay, in many question he asked that weight. So in that time he given that 1 centimeter cube weight is 10 grams. So he asked that find the weight. So whenever he asked that weight, first you calculate the volume, then multiply by mass. 1 centimeter cube mass is given. So you get the weight also. So how to calculate the weight? Weight equal to volume into 1 centimeter cube weight or mass. 1 centimeter cube mass is given, so you multiply by in volume, so you get the weight of the solid. So first we calculate the volume. Now in class 10th, the main concept is 3 main concepts are there, and in class 10th we study combination of solids. What is the meaning of combination of solids? Means when more than one solids are connected each other. He used the word mounted. Mounted का मतलब होता है जोड़ा जाना. किसी सॉलिड के ऊपर कोई सॉलिड जोड़ा जा रहा है या किसी सॉलिड में से कोई सॉलिड कट किया जा रहा है, तो उसका आपसे चीजें पूछेगा. तो क्या क्या पूछता है, तो मैं कॉन्सेप्ट यहां लिखने जा रहा हूं. टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया. तो इस टीएसए का मतलब ये नहीं कि आपको टीएसए वाला फॉर्मूला यूज करना है. ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं कर्व्ड सरफेस एरिया वही सफिशिएंट है, क्योंकि हमें केवल बाहर का एरिया चाहिए होगा उन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में. वो लिखेगा आपसे टोटल सरफेस एरिया, तो उसका मीनिंग केवल इतना होगा कि आपकी जितनी सरफेस है उसका एरिया निकाल के आप जोड़ दीजिए. और हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि अगर कोई सरफेस का एरिया एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हमें कई बार माइनस करना पड़ता है. बट अगर देखा जाए टोटल एक ओवरव्यू देखा जाए पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का, तो टोटल सरफेस एरिया में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम एरिया को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. और कभी कभी कोई एरिया जो एक्स्ट्रा हमने निकाल लिया उसको हम लोग माइनस भी करते हैं. जैसे मैं एक सॉलिड में बनाने जा रहा हूं. देखिए, ये आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके ऊपर कोनिकल पार्ट है और इसके इस तरफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है. तो कितने सॉलिड हो गए इसमें? 3 सॉलिड हो गए. मिडिल वन क्या है, जो रेक्टेंगल की तरह होगा वो सिलेंड्रिकल है, जो ट्रायंगल की तरह होगा वो कोनिकल है, और ये जो सेमी सर्किल की तरह होगा वो हेमिस्फेरिकल है. अब आपसे कहा जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है. कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपसे कहेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो, आप सबका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. यानी इस फिगर में आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसको ऐड कर देंगे, वही आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. तो मान लीजिए इस कोन का स्लैंट हाइट L है. अगर नहीं दिया है तो फर्स्ट वी फाइंड स्लैंट हाइट, और सिलेंडर का हाइट H ले लेते हैं और इसका रेडियस R. और जब भी कोई फिगर माउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा एक के ऊपर एक, तो सबका रेडियस तो सेम ही होगा, मैक्सिमम टाइम सेम होगा. तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, वी ऐड ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो सबका फार्मूला आप लिख देंगे, पाई आर एल CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. अब देखिए कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट किया जाए. हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आप सबका पहले फार्मूला लिख लीजिए और उसके बाद उसमें से कॉमन पार्ट ले लीजिए, जो भी उसमें कॉमन है वो ले लीजिए. उसके बाद वैल्यू रखिए. पाई का वैल्यू सबसे लास्ट में आप रखिएगा. या आप ये भी कर सकते हैं, आप इसका एरिया अलग निकालिए, इसका एरिया अलग निकालिए, इसका एरिया अलग फाइंड करिए. बट बी केयरफुल, पाई का वैल्यू आप मत रखिएगा. इस कोन का एरिया पाई के टर्म्स में, लाइक पाई आर एल, सिलेंडर का एरिया पाई के टर्म्स में, हेमिस्फीयर का एरिया पाई के टर्म्स में. उसके बाद ऐड करने के बाद पाई का वैल्यू आप रखेंगे लास्ट में. बट अगर आपको टाइम नहीं बचता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप उतने पाई करके छोड़ सकते हैं कि दिस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. सो और या तो आप सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, और देखिए कॉमन क्या है इसमें, पाई तो कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए. आर भी कॉमन है क्योंकि सबका रेडियस सेम है, तो पाई के साथ आर भी आप कॉमन ले सकते हैं. तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा बेटा, एल बचेगा. यहां पाई आर कॉमन लेने के बाद 2h बचेगा, और यहां पाई आर कॉमन लेने के बाद 2r बचेगा. और उसके बाद आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा. अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो पाई का वैल्यू मत रखिए, इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी बोर्ड में सही माना जाएगा, उसमें भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर. और कोई भी एरिया आप निकाल रहे हैं, अगर एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया में एक चीज आपको ध्यान रखना है,
सबका आपको कॉर्ड निकालना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जैसे क्यूबॉइड वाला एक क्वेश्चन है या क्यूब वाला क्वेश्चन है, उसमें हम लोग जब उसका एरिया निकालते हैं तो टोटल एरिया निकालते हैं। इसलिए मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको याद करने को कहा है, बाकी सबका कॉर्ड याद करने को कहा है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है, टोटल वॉल्यूम, दूसरा कॉन्सेप्ट, तो वही तरीका है, वॉल्यूम हम सबका निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। अब यहां पे भी आप सारे फॉर्मूले लिख लेंगे और पाई के टर्म्स में सबका आंसर निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू आप लास्ट में रखिएगा, ये सबसे मेन चीज है। तो अब हम लोग इसके दूसरे सेगमेंट पे आ चुके हैं, वॉल्यूम वाले पे। वॉल्यूम वाले में कई कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, वॉल्यूम मीन्स होता है कैपेसिटी। अब 3D फिगर की कैपेसिटी इंक्रीज भी कर सकती है। अगर एक फिगर के ऊपर एक फिगर रखा जा रहा है तो कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज, और अगर एक फिगर में से कुछ कट करके निकाला जा रहा है तो कैपेसिटी डिक्रीज हो सकती है। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम में कई कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन वॉल्यूम पे ही बेस्ड हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम ऐड भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। मैक्सिमम समझ लिए कि 80% क्वेश्चन वॉल्यूम वाले हैं। कब वॉल्यूम ऐड होता है, जैसे आपसे कहेगा एक 3D फिगर है, इसके ऊपर एक माउंट किया गया एक दूसरा 3D फिगर, तो व्हाट इज द कैपेसिटी। जैसे देखिए, ये सिलेंडर है और एक कोन माउंट किया जा रहा है, या एक स्फीयर है, उसकी जो गर्दन है, नेक है, वो सिलेंड्रिकल है। तो आपसे पूछेगा इसका टोटल वॉल्यूम बताइए, तो आप इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें माउंट हो रहा है, जुड़ रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई के फॉर्म में निकालेंगे, पाई का वैल्यू मत रखिएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई एंड देन ऐड। सो इन दोनों फिगर में हम लोग वॉल्यूम ऐड करेंगे। अब देखिए, कब माइनस कब करेंगे, यहां पे इसका वॉल्यूम V1 V2, सो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। इस केस में भी हम वॉल्यूम ऐड करेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम माइनस कब करेंगे, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वॉल्यूम माइनस कब करेंगे हम लोग। सपोज ये सिलेंडर है और इसमें से एक कोन को कट करके निकाल दिया जा रहा है, कोन को कट करके निकाल दिया जा रहा है। या ये क्वेश्चन देखिए, या आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड बॉक्स है, इस क्यूबॉइड में से 4 कोन या 3 कोन ऐसे कट करके इसमें गड्ढा किया गया, डिप्रेशन बनाया गया है। इन दोनों केस में अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द वॉल्यूम, इस केस में ये वुड है, लकड़ी पूरी यूज हुई है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक दिस बॉक्स, दैट शेप ऑफ बॉक्स इज क्यूबॉइड। So in these two figures we subtract the volume. We calculate the volume of cylinder and volume of cone and we subtract their volume, so we get the capacity, because इसमें कट करके निकाला जा रहा है। तो जब निकाला जाएगा तो वॉल्यूम सबट्रैक्ट होगा। तो इसमें आपका सिलेंडर वॉल्यूम माइनस कोन वॉल्यूम। आप इस फिगर में अगर वॉल्यूम हम लोग निकालें तो पहले हम लोग टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू एच, और उसमें से माइनस कर देंगे 3 कोन का वॉल्यूम। कितने कोन है, 3 कोन, जो गड्ढे हमारे हैं उसमें हमारी लकड़ी नहीं लगी है। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा, क्यूबॉइड वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 कोन। तो मैंने एक कोन का वॉल्यूम लिखा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इन केसों में हम लोग वॉल्यूम को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम इक्वल कब होता है, वो भी आप नोट कर लीजिए। हम वॉल्यूम इक्वल कब करेंगे, जब भी मेल्टिंग और रिकास्टिंग करके क्वेश्चन होगा, या डेली लाइफ के बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहां वॉल्यूम इक्वल किया जाता है। जैसे आपसे कहेगा इस 3D शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में बनाया जा रहा है, तो वहां पे हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं दोनों का। जैसे क्वेश्चन देखिए, this is a cone and it is melted and recast into a sphere। इस तरह की जितनी भी सिचुएशन होगी कि एक चीज को मेल्ट करके कुछ बनाया जा रहा है, या 1000 स्पेयर इज मेल्टेड एंड फॉर्म ए सिंगल स्पेयर, तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम इक्वल करते हैं। जैसे ये केस मैंने लिया, कोन से स्पेयर बनाया जा रहा है, तो इस साइड हम लोग कोन का वॉल्यूम लिखेंगे, उस साइड स्पेयर का वॉल्यूम लिखेंगे।
और वॉल्यूम लिखने के बाद पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये फायदा होगा हमें इक्वल में। और सपोज दैट कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है और स्फीयर का रेडियस पूछा जा सकता है, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। या स्फीयर का रेडियस दिया होगा, कोन का रेडियस दिया होगा, हाइट पूछा जा सकता है, तो कोई एक चीज मिसिंग रहेगी। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएंगी। या आपसे कहा जाएगा 1000 स्फीयर को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 1000 स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल किसके कर देंगे, एक स्फीयर के। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1000 स्फीयर आइडेंटिकल है, तो सपोज 1000 स्फीयर मेल्ट एंड रिकास्ट ए सिंगल स्फीयर। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर रेडियाई। सो इसमें भी यही हम लोग करेंगे, 1000 स्फीयर का वॉल्यूम 1000 इंटू 1 स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू दिस स्फीयर वॉल्यूम। तो इक्वल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस बताइए, तो आप 4/3 पाई को कैंसिल कर देंगे, तो यहां क्या बचेगा 1000 आर क्यूब। तो इसका कैपिटल आर क्यूब रूट ले लेंगे आप, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 10 और आर, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम वॉल्यूम इक्वल कब करेंगे, जब मेल्टिंग और रिकास्टिंग कहेगा। या इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए कि आपका एक जार है, उस जार में पूरा कोई ऑयल है, उस जार के ऑयल को खाली दूसरे बर्तन में किया जा रहा है, तो भी हम दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे उस जार का, और बस हमें शेप को पहचानना होगा। या मान लीजिए बारिश हो रही है और आपकी छत पे पानी जमा हो रहा है, उस पानी को आप एक सिलिंड्रिकल बर्तन में खाली कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम लोग दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ छत, जो छत है हमारा, उसका वॉल्यूम इक्वल करेंगे जिस बर्तन में आप उस पानी को खाली कर रहे हैं। छत का शेप क्या होगा बेटा, क्यूबॉइड, हम छत को क्यूबॉइड मानेंगे, और जो बर्तन है उसका शेप सिलिंड्रिकल है। दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो हमें निकालनी होती है। तो ये था मेल्टिंग रिकास्टिंग, जिसमें हम लोग वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। अब वॉल्यूम को डिवाइड कब करेंगे, डिवाइड वॉल्यूम को डिवाइड कब करेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नंबर पूछता है कि एक क्यूबॉइड शीट है, उससे कितने स्फेरिकल सिक्के काटे जा सकते हैं, कितने सिलिंड्रिकल सिक्के काटे जा सकते हैं, या कोई भी एक चीज है 3D फिगर है, उससे कितनी ये चीज बनाई जा सकती है। यानी जब भी आपसे नंबर पूछेगा तो आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। नंबर नोट कर लीजिए इसको, नंबर इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम किसका ऊपर रखेंगे, जो बड़ा वाला शेप होगा, जो ग्रेटर होगा, जिससे जो चीज बनाई जा रही होगी वो छोटी होगी, तो बड़े का वॉल्यूम ऊपर आएगा, नीचे आएगा छोटे वाले का वॉल्यूम। इसको नोट कर लीजिए, ग्रेटर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम। जैसे आपको एक क्यूबॉइड दे दिया जाए, उसका डायमेंशन आपको दिया होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, और एक स्फीयर आपको दे दिया जाएगा जिसका रेडियस दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा कितनी स्फीयर उसमें से कट करके निकाली जा सकती हैं। तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि अरे इसमें तो नंबर पूछ रहा है, तो नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम ऊपर आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऊपर आएगा L इंटू बी इंटू एच, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब नीचे आएगा। वैल्यू रखिए, काट के आंसर आपका आ जाएगा। तो नंबर वाले क्वेश्चंस में हम लोग वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है टाइम वाले क्वेश्चंस। टाइम वाले क्वेश्चंस बेटा, सिचुएशन होती है कि आपको एक टैंक दे देगा, इसका रेडियस और हाइट मान लीजिए ये है। ये जो टैंक है ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर टैंक अगर है तो उसका शेप क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया होगा, तो उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होगा। अब इसमें पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, ये जो पाइप है बेटा, इसका भी रेडियस और हाइट हमें दिया होगा, बट एक यहां पे मेन कॉन्सेप्ट है, इसका रेडियस तो दिया होगा लेकिन इसमें हाइट नहीं दिया होगा पाइप का, इसमें जनरली स्पीड देता है आपको, स्पीड। तो यही कॉन्सेप्ट मेन है, जो इसमें पानी का स्पीड है उसी को हम लोग हाइट लेंगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यानी हमें जो स्पीड दिया होगा उसमें डिस्टेंस दिया होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो 20 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करके जा रहा है। तो याद रखिएगा यही मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट स्पीड वी टेक द हाइट ऑफ और लेंथ ऑफ दिस पाइप। बस जो बच्चा ये समझ गया उसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको जो टैंक दिया उसको ऑब्जर्व कर लेना है कि टैंक का शेप क्या है, इट इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है तो क्यूबॉइड हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है। पाइप तो आपका सिलेंड्रिकल ही होगा। अगर इस पाइप की जगह कैनाल दिया है, नहर दिया है, कोई नहर से पानी बह रहा है,
जिसकी विड्थ है और हाइट है या चौड़ाई है, तो उसको भी क्यूबॉइड ही माना जाएगा। जहां पे LBH आएगा वो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा। नहर, जैसे हमारे नहर आपने देखा होगा, तो इसमें मेन चीज ये है, चाहे नहर में पानी बह रहा है चाहे पाइप में बह रहा है, अगर पानी का स्पीड दिया है तो वो उसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो सिलेंड्रिकल पाइप है तो उसकी हाइट, और अगर नहर का क्वेश्चन है, कैनाल का, तो उसकी लेंथ हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे डायमेंशन सबका, कि ये जो टैंक है इसका रेडियस और हाइट किसमें है, इसका रेडियस और ये स्पीड जो हमने हाइट माना है वो किसमें है। अगर डायमेंशन सारे सेम है तो हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर डायमेंशन कुछ भी सेम नहीं है तो हम उसको सबको सेम कर लेंगे सबसे पहले, यानी सेंटीमीटर में कर लेंगे या मीटर में कर लेंगे। और उसके बाद टाइम का फार्मूला भी वही है जो नंबर का है। कभी भी आपसे टाइम पूछे तो वही फार्मूला जो नंबर का है, टाइम इज इक्वल टू ग्रेटर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम। यानी नंबर पूछे चाहे टाइम पूछे, हमें वॉल्यूम डिवाइड करना है। ग्रेटर वॉल्यूम इसमें कौन होगा बेटा, ग्रेटर वॉल्यूम सिलेंडर होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बड़ा शेप का है, और जो पाइप है उसका शेप छोटा है, उसका रेडियस कम है। तो टैंक का वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे और पाइप का वॉल्यूम नीचे लिखेंगे। अब मान लीजिए टैंक आपका सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच ऊपर लिखेंगे, पाइप भी आपका सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच नीचे लिखेंगे। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका आर और एच यहाँ ऊपर रखेंगे और इसका आर और एच जो स्पीड है वो एच होगा वो नीचे रखेंगे और टाइम निकाल लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि टाइम का यूनिट क्या होगा, तो टाइम का यूनिट या तो आवर होगा या मिनट होगा या सेकंड होगा, तो वो डिपेंड करेगा स्पीड पे कि आपको स्पीड किस में दिया है। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया है तो टाइम आपका आवर में आएगा। अगर आपको स्पीड पर मिनट में दिया है तो टाइम की यूनिट मिनट आएगी। अगर आपकी स्पीड पर सेकंड है तो टाइम आपका सेकंड में आएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो यानी वॉल्यूम ही हमारा मेन टॉपिक है।